हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लास। आज मैं पॉलिनोमियल्स का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं जो कि एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको जो है किस तरह से जो है सॉल्व करते क्वेश्चन उसके विषय में बताऊंगा। जो मेरा पहला वीडियो था पॉलिनोमियल से, वे उसकी डिफिनेशन, उसके टाइप्स और एक्सपोनेंट और उसके बाद कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं उसके विषय में बताया गया था। पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया था। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो है एक्सरसाइज 2.1 को जो है कैसे सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट मेरी पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वे जो है यूट्यूब पे जा करके एग्जाम क्लास बाय सर्वेश सर सर्च करें और वहां से पॉलिनोमियल से रिलेटेड सभी वीडियो को क्या करें देखें। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप न करिए, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है वो बीच में छूट जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ये लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स in one variable and which are not. State reason for your answer. यानी इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्लास 9 के एनसीईआरटी की बुक में जो है 2.1 में ये है कि आपको ये बताना है कि दिए गए जो पॉलिनोमियल्स में कौन से पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला देखिए फर्स्ट 4x² minus 3x plus 7. In this polynomials only one variable number is present, x। कितने हैं? केवल एक ही वेरिएबल नंबर है जो है क्या है, x है। And the exponent of the polynomials is a whole numbers. In this polynomials only one variable numbers x is present and the exponent of the polynomials is a whole numbers. So this polynomials is a polynomials in one variable. तो यहां लिखेंगे is 4x² minus 3x plus 7 is a polynomials in one variable. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है y² plus √2. In this polynomials y is only one variable numbers and the exponent of y is 2. 2 is a whole numbers, so y² plus √2 is a polynomials in one variable. Polynomials in one variable. Understand? Next, third 3√2 plus t√2. In these polynomials 3√t. In these polynomials the first in this polynomials only one variable number is present, t, but the exponent of the first t is not a whole numbers. The exponent of first t is not a whole numbers and the exponent of second t is a whole numbers. So this polynomials is not a polynomials in one variables. So लिखेंगे is not polynomials in one variable. ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन। यहां पे √t को हम राइट कर सकते हैं t⁻1/2। और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल्स इन विच ओनली वन वेरिएबल नंबर इज प्रेजेंट एंड देयर एक्सपोनेंट of variable number is a whole number.
यानी जो एक्सपोनेंट है उसका जो वेरिएबल नंबर है उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, को होल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे जो फर्स्ट टी है इसका एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट में है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y is not a polynomials, is not a polynomials in one variable because, why? Because the exponent of second, the exponent of second y is not a whole number. Understand? In this polynomials y plus 2/y, the exponent of first polynomials is 1, but the exponent of second polynomials is equal to y to the power minus 1, because it is in the form of 2 into 2/y is equal to 2 into 1/y. We can write 2/y is equal to 2 into 1/y, and 1/y is equal to y to the power minus 1. So y plus 2y is not a polynomials in one variable. Understand? Next question. क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का, x to the power 10 plus y cube plus t to the power 50 is not a polynomials in one variable, is not a polynomials in one variable. Why? In this polynomials, the exponent of all variable numbers is whole, but why it is not polynomials in one variable? Because in this polynomials there are three variable numbers are present. In this polynomials, three variable numbers x, y, and z. Sorry, x, y, and t. X, y, and t. Three variable numbers are present. So this polynomials is not a polynomials in one variable. It is a polynomials in three variables x, y, and z. Understand? ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जो स्टूडेंट इसको नोट करना चाहते हैं वे नोट कर ले, पहले तो नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 2 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इन द फर्स्ट वीडियो आई सेड टू यू द मल्टीप्लिकेटर फैक्टर्स। मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जिस टर्म में
जिस वेरिएबल नंबर या कांस्टेंट नंबर का आपको जो है कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, हम ये वॉच करते हैं कि उसमें किसका मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां ध्यान देंगे ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई किया गया है, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम देख रहे हैं तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं सभी क्वेश्चनों में। सेकंड क्वेश्चन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए साइन क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में प्लस था तो हमने +1 लिखा, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू एक्स स्क्वायर, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1 होगा। नेक्स्ट थर्ड पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दिस polynomials coefficient of x square is equal to pi upon 2, because pi upon 2 का मल्टीप्लाई हम x स्क्वायर में किए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में पाई अपॉन 2 जो है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। फोर्थ √2 x minus 1, in this polynomials x square is absent, in this polynomials x square is absent, so the coefficient of x square is equal to 0, so the coefficient of x square is equal to 0, coefficient of x square is equal to 0, why, because x square is absent in this polynomials। तो जो स्टूडेंट्स को कॉपी करना चाहते हैं कॉपी करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव वन एग्जाम्पल्स ईच ऑफ बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 35, बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, यानी आपको जो है एक बायनोमियल्स यानी द्विपदी, जो हिंदी में कहे तो द्विपदी बहुपद जो होता है उसको राइट करना है, और एक आपका मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स राइट करना है। फर्स्ट में आपको दिया है कि जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, और सेकंड में कह रहा है कि जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट में तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2x टू द पावर 35 प्लस x राइट कर दो। यहां देखिए कितने टर्म है इस पॉलिनोमियल्स में, 2 टर्म है। कितने टर्म है 2 टर्म है इस पॉलिनोमियल्स में, 2 टर्म है, और डिग्री ऑफ जो है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 35। व्हाई? बिकॉज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 35। सेकेंड्स monomials of degree hundreds, we can write x to the power 100. It is a complete polynomials because it is a type of monomials polynomials. It means one term. It means one term present. तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये था थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इसमें क्या करना है, आपको डिग्री राइट करनी है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन 5x³ फर्स्ट 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको ये बताया था कि हम डिग्री कैसे जो है राइट करते हैं। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल नंबर्स आर कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। In this polynomials, the highest exponent is 3. तो the degree of polynomials is equal to 3. यहाँ राइट करेंगे degree of polynomials is equal to 3. Second, 4 minus y²। यहाँ पे आपका होगा degree of polynomials is equal to 2. Next, third, 5t minus root t, इसकी डिग्री क्या होगी 1। फोर्थ 3, इसकी भी डिग्री कितनी होगी 1 होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्लासिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और जो है लीनियर है। तो मैंने पहले वाले जो वीडियो मैंने आपको बताया था, मैं बार बार पहले वाली वीडियो को इसलिए नाम ले रहा हूं कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वे मेरी फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपको जो है लीनियर जो है पॉलिनोमियल्स क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, बाई क्यूबिक क्या है, ये सब मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। और जो है उसको कैसे सर्च करें, तो जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर दे एग्जाम क्लास बाय सर्वेश सर, वहां पे आपको जो है मिल जाएंगे वीडियो। सभी वीडियो जो है इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो है मिलती रहेंगी आपको। तो ध्यान दीजिएगा, तो लीनियर पहला क्वेश्चन आपका है x² प्लस x² प्लस x। So in this polynomial, the degree of polynomials is 2, and according to the definition, this polynomial is a type of quadratic polynomials, because a polynomials which degree is 2 is called quadratic polynomials, and a linear polynomials their degree is 1, जिसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी वे लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, और जिसकी डिग्री 2 होगी वे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, और जिसकी डिग्री 3 होगी, कितनी होगी 3 होगी, वे आपका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। तो यहां देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 2, सो दिस टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। डिग्री of polynomials is equal to 2, so x² plus x is a quadratic polynomials। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड की। तो x माइनस x³ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 3, सो x माइनस x³ इज अ
अब ध्यान दीजिए डिग्री कितनी है 3 है, तो जब डिग्री 3 होगी तो ये पॉलिनोमियल्स आपका क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा जो है क्वेश्चन, अगला है थर्ड है y plus y square plus 2 plus 4. In this polynomials, degree of polynomials is equal to 2. So this is called, जब 2 डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, this type of polynomials is called quadratic. क्या होगा quadratic polynomials। इस तरह से आपका 1 प्लस एक्स ये आपका बने होगा जो है लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 है, 5 3t ये भी लीनियर आपका होगा, और 6 आर स्क्वायर। अब इसकी डिग्री क्या है 2 है, जब डिग्री 2 है तो क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक हो गया। और 7 वाला जो होगा ये आपका होगा 7x क्यूब इक्वल टू, ये आपका होगा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है, ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये आपका एक्सरसाइज जो है फर्स्ट था, जिसमें कि जो है एक्सरसाइज 2.1 को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। और अभी तक जो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं डेली एक वीडियो लेकर आऊंगा और जो है एक एक्सरसाइज कभी कभी दो एक्सरसाइज डेली आपको बताई जाएगी। तो धन्यवाद। हाँ, और स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा कि ये अपने जो क्लासमेट्स हैं जो इनके साथ पढ़ते हैं उनको भी क्या करें शेयर करें, जिससे कि ये तो पढ़ें और इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति में अदर स्टूडेंट जो घर पे बैठे हैं वे भी क्या करें आसानी से पढ़ सकें। धन्यवाद।